السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اپنا عمل آپ بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین سامعین، ایک ویڈیو میں نے بنائی، اس کے متعلق لوگوں کے کچھ غلط فہمیاں ہیں، اس کے بارے میں آج ایک اور ویڈیو، غالباً تیسری ویڈیو بنا رہا ہوں کہ عورت کے حیض سے جادو کیسے ہوتا ہے، کیسے ٹوٹتا ہے۔ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے، ایسی بات ہے جس کو کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے، اور ہر بندہ اس بات پہ آگاہی یا اس بات کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا لڑکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے یا مرد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس میں کسی طریقے سے کسی شخص کو اپنے قابو میں کر لوں، محبوب کو کر لوں، میاں کو کر لوں، بیوی کو کر لوں، اور شوہر کو کر لوں۔ پلا 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 عجیب و غریب واقعات سامنے آتے ہیں، اور اکثر لوگوں کی کالیں جتنی مجھے ملی ہے ویڈیو جو میں نے بنائی ہے، حالانکہ اس میں نے اس طرح کوئی بات نہیں کی، اکثر لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ ہم کس طرح، یعنی کہ اس ناپاک خون کو اپنے شوہر کو کیسے پلائے، یا لڑکے کہتے ہیں کہ ہم پلا لڑکی سے محبت کرتے ہیں، اس کو کیسے پلائے اور کیا وہ ہمارے قابو میں آ جائے گی۔ ہم اگر میاں کو کھلائے تو کیا ہمارا میاں ہمارے قابو میں آ جائے گا، ہماری بات مان لے گا۔ تو ان تمام باتوں کے میں آج جواب دینے کی کوشش کروں گا اور اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے ویڈیو میں وضاحتی بات کو بیان کر دینا۔ تو اگر آپ لوگ ایسا سوچتے ہو کہ آپ عورت کے حیض یا ناپاک خون، صرف ضروری نہیں کہ اس میں خواتین ہی شامل ہو، اس میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اس میں کسی کتے کا خون ہو سکتا ہے، خنزیر کا خون ہو سکتا ہے، بلی کا خون ہو سکتا ہے، کوی کا خون ہو سکتا ہے، ایسی چیزوں کا خون، یعنی خون کی میں بات کر رہا ہوں جو ہمارے جسم سے نکل جاتا ہے، چوٹ لگ جاتی ہے، خون نکلتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، نہ ایسی چیزوں کا جو حرام ہے، جو اسلام میں حرام ہے، شریعت میں حرام ہے، جس طرح بلی ہو گئی، کوا ہو گیا، خنزیر ہو گیا، کتا ہو گیا، ایسے بہت سارے جانور ہیں جو حرام ہے، گدہ ہو گیا، یا ایسے بہت ساری اور چیزیں، اس کا خون اگر ہم کسی کو پلائے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس سے ہمارا شوہر ہماری مٹھی میں ہو جائے گا، یا ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کو اگر پلائے تو ہماری مٹھی میں ہو جائے گا۔ عموماً لوگ ان خون کی بات نہیں کرتے، زیادہ تر لوگ خواتین کی حیض کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں۔ تو کیا ایسا ممکن ہے، ایسا پاسبل ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کرے اور اس کی شوہر اس کے قابو میں آ جائے؟ تو میں اس کا صاف صاف جواب دوں گا کہ نہیں، ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے، ایسا ہرگز پاسبل نہیں ہے۔ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں، اور اس کے واقعات میں نے کئی بار سنائے ہیں، لیکن شاید لوگ زیادہ تر توجہ نہیں کرتے، بس اوپر سے بات دیکھ لیتے ہیں یا سن لیتے ہیں اور اس چیز کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں، میں نے اس کے توڑ کا بتایا ہے، اور آج بھی اس ویڈیو میں توڑ بتاؤں گا۔ اگر کوئی کھلانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کے نقصانات کیا ہے؟ فوائد تو ہے ہی نہیں کہ میں کوئی فائدہ بیان کروں، فائدے کی دہا سے اپنے دل و دماغ سے بات نکال دے۔ ہاں، کچھ فائدے ہیں، میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، اس کو آپ لوگ فائدے کہہ لے یا نقصانات کہہ لیں۔ میری نظر میں وہ فائدے ہیں، اگر آپ لوگوں کو وہ فائدے نظر آتے ہیں، یعنی آپ لوگوں کو بھی فائدے نظر آتے ہیں، تو آپ بے شک اپنے شوہر کو اس طرح کر سکتے ہیں کہ اپنے محبت میں قابو کرنے کے لیے اپنے شوہر کو اپنا ناپاک خون کھلا سکتے ہو، پلا سکتے ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو۔ پہلا فائدہ، آپ کا شوہر جو آپ سے محبت نہیں کرتا، وہ آپ کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی کی ضرور تمنا کرے گا، یا دوسری لڑکی کی ضرور تمنا کرے گا، یہ مانے یا نہ مانے، آپ لوگ مانے یا نہ مانے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، یہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ آپ کا شوہر آپ کے ساتھ ایک اور کی بھی تمنا کر سکتا ہے۔ اگر آپ دوسری ہیں اور آپ کا یہ سوچ ہے کہ میری شوہر صرف میرا ہی ہو جائے، میں اپنا ناپاک حیض پھیلا دوں اور وہ صرف میرا ہو جائے، میری پہلی بیوی کو بھی چھوڑ دے، تو پھر آپ اس چیز کا انتظار کر لیں کہ آپ اس کے لیے تیسری کا انتظام کر رہے ہو، یعنی یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کے لیے یہ فائدہ ہے کہ آپ اب اپنے شوہر کے لیے تیسری کا بھی انتظام کر رہے ہو، صرف ناپاک خون پلانے کی۔ اس کی پیچھے وجہ یہ ہے کہ اس سے انسان کے اندر ہوس بڑھ جاتی ہے، اور وہ ہوس شہوت کی ہوتی ہے، وہ ہوس ظلمت کی ہوتی ہے، وہ ہوس بہت برائی کی ہوتی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ اس کی ہوس کو پورا کر سکتے ہو، یا اس کے لیے دوسرے کی کوشش کر سکتے ہو، یا تیسرے کی کر سکتے ہو، یا چوتھے کی۔ جتنی شادیاں کرتے جاؤ گے اس کی اتنی ہوس بڑھتی جائے گی۔ ایک شخص نے کہا کہ میری بیوی شادی سے پہلے سب سے خوبصورت مجھے لگتی تھی، شادی سے پہلے سب سے بدصورت لگنے لگی۔ تو اس عالم نے کہا کہ اگر آپ کو ساری دنیا کی بیویاں سے مثال کے طور پہ شادیاں ہو جائے،
कोई भी लड़की ना रहे और सारे आपकी बीवी बन जाए, तो फिर भी तुम कहोगे कि मेरी बीवी बदसूरत है, और कोई कुत्ती या कुत्ता सामने से गुजरेगा तो आपको खूबसूरत नजरेगा। ये तो हर चीज़ इंसान ऐब उसको नज़र आती है। इंसान को अपनी फैमिली में ऐब नज़र आते हैं, जिस तरह वालदेन में आते हैं, बहन भाइयों में आते हैं, अपने कारोबार में ऐब नज़र आते हैं, एक से आगे दूसरा, दूसरे से आगे तीसरा। तो बीवियों में यही मिजाज है, लेकिन इस्लाम ने इंसान को एक हद में रखा है जिसकी वजह से वो किसी उससे आगे नहीं जा सकता। तो एक फ़ायदा, अगर आप पहली बीवी हो और आप कहते हो कि मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करे, और उस मोहब्बत का इंतहा ये हो कि या तो वो दूसरी लड़कियों के पास जाए या आप उसके लिए दूसरी लड़की ब्याह करके लाओ, शादी करके लाओ, तो एक फ़ायदा ये है। अगर आप दूसरी हो और आप कहें कि मेरी पहली यानी मैं सोतन हूँ या पहली है दूसरी है, तो आप तीसरी का इंतज़ाम कर लिए, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा है अगर आप करना चाहते हो। फिर ऐसे लोग, ऐसी लड़की, अक्सर ऐसी लड़कियां भी होती हैं कि वो कहते हैं कि मैं इस लड़के को अगर ये नापाक खून पिलाऊं तो मुझसे शादी के लिए राज़ी हो जाएगा। तो हाँ, ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये लफ्ज़ यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है बयान करना, लेकिन बयान कर सकता हूँ कि अगर आपने ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया कि हाँ आप उसको अपने नापाक खून पिलाए और फिर कहे कि वो मुझसे शादी करेगा, मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करेगा, उसकी बेइंतहा मोहब्बत यही होगी कि कोई भी टिश्यू पेपर का कोई कागज़ उठा ले और उसके हाथ जितने गंदे होंगे अपने हाथों के ऊपर उसको उतना ही ज़्यादा मलता जाएगा, उतना ही ज़्यादा उसको मलता जाएगा। एक टिश्यू ख़त्म हो जाएगा, दूसरा उठा लेगा, यहाँ तक कि उसके हाथ साफ ना हो जाए। यहाँ पे मैं जो बात करने की कोशिश करूँगा, उस खातून को, उस लड़की को ये मुखातिब करने की बात मैं कर रहा हूँ कि आप उसके सामने फिर होंगे टिश्यू पेपर, और वो जब तक चाहे, जहाँ तक चाहे, जिस तरह चाहे इस्तेमाल करके फिर आपको आहर फेंक देगा। उसकी मोहब्बत की जो इंतहा होगी वो इस चीज़ पे ख़त्म हो जाएगी। एक वक्त आएगा फिर इसी चीज़ पे उसका इंतहा ख़त्म हो जाएगी। और ऐसे केस मेरे पास लातादाद आए हैं, कई दर्जनों आए हैं। हज़ारों की बात तो नहीं कहूँगा, सैकड़ों भी नहीं कहूँगा, लेकिन दर्जनों में कहूँगा कि ज़रूर कई केसेस मेरे पास ऐसे आए कि उन्होंने ऐसी गलतियाँ की और फिर लाजमी बात है जो उन्होंने करना था वो कर लिया। फिर लड़की की बात क्या होती है, बड़ी अजीब बात होती है, और बड़ी बड़ी अजीब बात होती है, और लड़कियाँ इससे बहुत ज़्यादा मुतमईन हो जाती हैं कि हाँ ये है, और वो है माँ बाप नहीं मानते। बस इतनी सी लफ्ज़ है। इस लफ्ज़ के बाद लड़की भी कहती है, क्योंकि अब उसके ऊपर उसके हाथ और साफ नहीं हो सकते। टिश्यू एक वक्त तक काम करेगा। टिश्यू पेपर तो एक कागज़ होता है, एक कागज़ का छोटा सा टुकड़ा होता है, एक वक्त तक काम करेगा, फिर तो ख़त्म हो जाएगा, रद्दी हो जाएगा, फेंकने का काबिल हो जाएगा। तो लाजमी बात है फिर वो कहेगा कि माँ बाप नहीं मानते, और बेचारी लड़कियाँ इसी बात को एक्सेप्ट कर लेती हैं। हालांकि ये बात सरासर गलत है, ये बात याद रख लेना कि सरासर गलत है। अगर मैं एक मर्द हो के आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो ये बात सरासर गलत है कि ऐसा कुछ नहीं होता। शादी करने वाले फिर माँ बाप के लिहाज नहीं रखते, फिर किसी का लिहाज नहीं रखते, फिर किसी रिश्तेदारों के लिहाज नहीं रखते, फिर बिरादरी के लिहाज नहीं रखते। अगर लिहाज रखते हैं तो फिर सिर्फ इस चीज़ का लिहाज रखते हैं कि बस ये अब बेकार हो गई है, इसका इस्तेमाल मैं और नहीं कर सकता, मैं कब तक इसका इस्तेमाल करूँगा। मैं बहुत मुश्किल से ये बातें दोहरा रहा हूँ, लेकिन ये बातें करना बहुत ज़रूरी है। और रोज़े की हालत में मैंने इन बातों को दोहराया किया, क्योंकि ऐसे केस मेरे सामने रोज़ बरोज़ बढ़ती जाती है। औरत के हैज़, आप लोग अगर कोई आप में से किसी ने ये गलती की है, अब मैं कहूँगा कि अगर किसी ने ये गलती की है, वो लड़की की शक्ल में हो या बीवी की शक्ल में हो, अगर किसी ने की है तो फिर उसका तोड़ भी इसी वीडियो में बता देता हूँ। अगर ख़ुद से तोड़ करना है तो जो 4 कुल है ना, चारों कुल, यानी 4 कुल से मुराद वो कुल होते हैं जिसमें पहले जिस तरह कुल हुवल्लाहु अहद, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये 4 कुल हैं। आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, कुरान पाक में तो हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन सर्च करो 4 कुल, जिसको नहीं पता तो 4 कुल, चारों सूरतें आ जाएंगी। ये 4 कुल जो सूरतें हैं, इसको आपने हर सूरत को 1100 मरतबा पढ़ लेना है। यानी सूरह काफिरून को 1100 मरतबा, ये आप 11 दिन में भी कर सकते हो, यानी रोज़ाना 1100 मरतबा पढ़ना है और 11 दिन तक पढ़ना है। 4 दिन 4 घंटे का अमल है। ये आपने कर दिया, सूरह काफिरून सिर्फ पढ़ लिया 11 दिन तक। फिर उसके बाद आती हैं सूरह इखलास। मैं तरतीब भी लिख लेता हूँ, सूरत काफिरून, सूरत काफिरून, काफिरून, इखलास, सूरह इखलास, पलक और आखिर में नास। ये सूरह काफिरून 11 दिन तक 11 दिन तक 11 दिन तक 1100 मरतबा
इस तरह 11 दिन तक 1100 मरतबा, फिर एक दिन छोड़ देना है, यानी एक दिन का नागा कर ले, फिर सूर्य इखलास 11 दिन तक 1100 मरतबा, पलक 11 दिन तक 1100 मरतबा, नास 11 दिन तक 1100 मरतबा। ये आपका आप हिसाब लगा ले गालिबन 44 दिन का या जितने दिन का भी अमल है, चिल्ला है। पहले मैंने और तरीके से बताया था, ये आज और तरीके से बता रहा हूँ। ये चिल्ला अगर किसी ने वाकई ऐसी गलती की है, क्योंकि ये मापी वाली गलती नहीं है, और अगर इसका इलाज की बात करें कि इस पे इलाज पे कितना खर्चा, तो अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो इस पे लाखों में खर्चा आता है। मैं लाखों में इसलिए कहूँगा कि जिस शख्स को तिलसीमिया होती है, खून चेंज करने वाली बीमारियाँ होती हैं, तो उस पर कितना खर्चा आता है। यहाँ अमलियात में भी यही है कि उसको खून चेंज करना पड़ता है, रूहानी खून, उसको इतने तावीज़ात पिलाने पड़ते हैं, उतनी रूहानी पानी उनको देना पड़ता है, रूहानी दम उनको करने पड़ते हैं कि जब तक उसकी नस नस से ये नापाक खून ना निकले, नापाक गंदगी ना निकले, उस पर असर पड़ता रहेगा। और मेरे तजर्बे की बुनियाद पे अगर कोई कहे कि 1-2 दिन में, तो मेरे पास जो सर्कल है, एक तो 49 दिन का सर्कल है, उससे तो काम हो जाते हैं, लेकिन फिर 49 दिन के सर्कल फिर 7 सर्कल करने पड़ते हैं, तो गालिबन 100 दिन का, तो 100 दिनों में 2 सर्कल हो जाती हैं, तो 1 साल के करीब ये 6 महीने इस पर लग जाते हैं। मामूली बात नहीं है, मैं क्लियर बात करने की कोशिश करूंगा। अक्सर लोग कहते हैं 1 दिन 2 दिन 7 दिन 5 दिन, ऐसी चीज़ें नहीं होती। जितनी बीमारी लंबी उतना उसका इलाज लंबा। तो ये अमल 11 दिन का अमल 1100 मरतबा, फिर 1 दिन नागा, फिर 11 दिन का अमल, फिर 1 दिन नागा, फिर 11 दिन। ये आपने पानी पे दम कर लेना है, सरसों के तेल पे दम कर लेना है, शहद पे दम कर सकते हो, चीनी पे दम कर सकते हो, आटे पे दम कर सकते हो। घर में जितनी भी इस्तेमाल वाली चीज़ें हैं, आप उन सारों पे इसको दम करके फिर मामूलाती, मिसाल के तौर पे आपने आटे पे दम किया, तो आटा आप कोशिश कर ले कि आपके चलता रहे, वो पानी चलता रहे, तो फिर आपका ये इलाज बहुत जल्दी, यानी 40-50 दिन या 1-2 महीने में ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दम वाला खाना खा रहा, रोटी खा रहा है, पानी पी रहा है, और अगर शहद वगैरह या कोई और चीज़ है, तेल इस्तेमाल कर रहा है, जिस्म पे लगा रहा है, बालों पे लगा रहा है, दाढ़ी पे लगा रहा है, हाथ पैरों पे लगा रहा है तेल, यानी हर तरफ से वो खिसार में आ जाएगा। तो फिर ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त अमल है। हाँ, अगर कोई इनको दम कर ले और मुझे वो पानी दे सकता है तो उसकी मेहरबानी होगी। मैं उन पानी को दूसरों तक भी देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे पास मौजूद है वो और तरीके से। लेकिन अगर कोई शख्स इस अमल को फिर कर लेता है और वो पानी मुझे भी देना चाहते हैं, तो बेशक मैं उसको अपना एड्रेस दे सकता हूँ, और मुझे ये पानी ज़रूर भेज दें। अगर किसी का दिल बहुत बड़ा है कि हाँ, मेरे लिए अगर अच्छा हो जाए, दूसरों के लिए भी अच्छा हो जाए, तो कर सकते हैं, उनकी मेहरबानी होगी। ये अमल इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखे, ख्याल रखे कि इससे कोई आपके काबू में नहीं आ जाता, आपके काबू से चला जाता है। लड़कियाँ, ऐसे बहुत सारे केस मेरे सामने आए हैं। मैंने इसलिए वजाहती बातें खुद को बहुत रोक रोक के, लेकिन फिर भी कोशिश की कि साफ बातें कर लूँ ताकि कोई ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। तो इसलिए मैंने कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए होंगे जो शायद बहुत लोगों को बुरे लगे होंगे, लेकिन मेरे पास कोई और आसान अल्फाज नहीं है कि मैं उसको बयान करूँ। फिर भी इसके बारे में अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और ये जो पानी वगैरह फिर कितनी महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कोई कहे, तो मैं कहूँगा कि जब तक आप अपने शोहर के साथ रहना चाहते हो वहाँ तक इस्तेमाल कर ले, वरना कम से कम 2-3 महीने तो इसको इस्तेमाल करें। पानी, आटा, चीनी, शक्कर, जो आपके घर के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता, पता नहीं आप घर में क्या खिला रहे हो, क्या पिला रहे हो, तो ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि जो जो चीज़ें आपके शोहर इस्तेमाल कर रही है या आप घर में इस्तेमाल कर रहे हो, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपका शोहर ही वही पी ले, आप भी इस्तेमाल करो, अपने बच्चों को भी दो, ताकि आइंदा भी अगर खुदा ना खास्ता कभी आप पे या आपके घर वालों पे ऐसा मसला आ जाए तो आप उसके लिए तैयार हो और आप पे इसका असर जल्दी ना हो। उम्मीद है कि इन बातों से थोड़ी बहुत आप लोगों को फ़ायदा मिला होगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।